Good morning, everyone. I'm Renu Tamboli, your teacher from LPS. So today we are going to start to do exercise which is regarding our last class, chapter number 4. आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं जो हमारी लास्ट क्लास से रिलेटेड है. कौन से चैप्टर की है? चैप्टर नंबर 4 की है. So without taking for the time, let's get start our exercise. Yes. Before start to do this exercise now beta, right now I'm going to play a video which is regarding chapter number 4. You just see it and try to recall this chapter. The Elephant's Nose. It's so much fun to be in zoo. Wow, I wonder what that is. It looks like a very big lizard. That's a crocodile, son. It, in fact, is a member of the lizard family. Does that mean it can crawl on walls and eat flies like lizards? No, crocodiles don't do that. They eat bigger animals. They are dangerous. Be careful. Wow, that's the elephant. It's so big. But why is its nose so long? Let me tell you a story about how the elephant's nose became so long. This story is called The Elephant's Nose, and it was written by Rudyard Kipling. He is also the author of The Jungle Book. Wow, Jungle Book is my favorite book. I love Baloo, the bear. He's so funny. Now listen carefully to this story. Years ago, the elephant's nose was as small as a boot, but a curious little baby elephant changed that. The baby elephant used to ask many questions, but other animals could not answer them. One day he asked, "What does a crocodile eat for dinner?" This question scared the other animals, and they said, "Shh." But that did not stop him. Finally he asked the Kolo bird. The Kolo bird asked him to go to the grey, green and greasy Limpopo River to get his answer. So the baby elephant headed off to the Limpopo River. He saw a log of wood at the edge of the river, but weirdly it winked. He asked the winking log of wood if it had seen a crocodile nearby. The creature half lifted its tail out of the mud and said, "I am the crocodile." The baby elephant kneeled down in excitement and told the crocodile that he has been looking everywhere for him. He then asked the crocodile, "Will you please tell me what you eat for dinner?" To this, the crocodile asked him to come nearer so that he could whisper. The baby elephant brought his head close to the crocodile's mouth, but the crocodile caught his little nose. The baby elephant realized he was in big trouble, so he tried to pull back. Even the Kolo bird came to help him. The crocodile also kept on pulling from the other side. They both pulled and pulled, and the little elephant's nose kept on scratching. Finally, the crocodile let go and the baby elephant fell on his big, broad back. When he looked at his nose, he saw that it was very long and he could swish it around, but it also hurt him. He wrapped his nose in cool banana leaves and waited for it to shrink, but nothing happened. He returned home, but his nose has stayed like that ever since. Long. Oh, poor baby elephant. Does it still hurt him? No, son. It works in his favor now. Look. Now he uses his long nose to pick bananas out of the tree. He can also use it to spray himself with water for bath. You know what, Dad? Now I'm glad that the elephant got his nose stretched. What do you want to see now? The Kolo bird. Yes, students. Did you recall your chapter?
आपने चैप्टर को रिकॉल किया, याद है आपको चैप्टर? उसमें आपने क्या पढ़ा था? एक क्यूरियस एलिफेंट बेबी था, चाइल्ड था, और एक क्रोकोडाइल। उन दोनों के बीच में क्या ऐसा हुआ कि एलिफेंट की नोज थी वो क्या हो गई? लॉन्ग हो गई, और फिर उसकी जो नोज थी वो उससे बहुत सारी चीजें उसके लिए हेल्पफुल बनी, जैसे कि उसको फ्रूट्स खाने में ट्री से तोड़ तोड़ के बहुत हेल्पफुल हो गया। वो है ना रिवर में जाता था तो अपनी नोज सूंड का यूज करके वो क्या कर सकता था? बात कर सकता था, नहा सकता था सेल्फ, है ना? तो आपने देखा इस चैप्टर को। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यस, नाउ लिसन टू मी, बी केयरफुली। लेट्स गेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 8। यस, नंबर दी सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब जो सेंटेंस दे रखे हैं ना उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको लिखना है। मतलब जो बॉक्स दे रखे हैं ना उसमें आपको नंबर्स डालने हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। पहला देखो, इन सारों में से ना सबसे पहले कौन से इंसिडेंट्स पहले हुई, कौन सी इंसिडेंट पहले हुई, कौन सी घटना पहले हुई? देखो पहले क्या होगा? अ क्यूरियस elephant's child wanted to know what a crocodile had for dinner। पहले के ना एक जिज्ञासु हाथी का बच्चा था, उससे क्या वो क्या चाहता था, क्या जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या लेता है। पहली ये इंसिडेंट हुई थी ना। अब सेकंड देखो क्या हुई, नंबर सबसे ऊपर वाला सेंटेंस हुआ सेकंड नंबर पे। He made the Kolo Kolo bird who asked him to go to the Limpopo river। एक कोलो कोलो बर्ड ने बोला कि तुम लिम्पोपो रिवर पे जाओ, वहां तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यही घटना हुई थी ना सेकंड नंबर पे। इसके बाद में देखो क्या हुआ, लास्ट सेंटेंस देखो अपना। द क्रोकोडाइल कॉट द एलिफेंट्स चाइल्ड बाय हिज नोज। क्रोकोडाइल ने एलिफेंट को उसके नोज से पकड़ लिया था। नंबर 4 देखो क्या होगा, दे बोथ पुल्ड एंड पुल, दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। अब लास्ट नंबर जो बच्चा है वही लास्ट होगा। द एलिफेंट चाइल्ड फेल एंड हिज नोज हैज स्टेयर्ड लॉन्ग एवर सिंस। हाथी का बच्चा नीचे गिर गया और तब से ही उसकी जो नोज थी वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई? लंबी हो गई। समझ में आया? सारे सेंटेंस को इनके घटनाक्रम के अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में लिखना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर बी। एक्सरसाइज नंबर बी देखो क्या है नेक्स्ट पेज पे। दीज ऑल आर क्वेश्चंस बेटा, ये सारे क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कस इन आवर नोटबुक वर्क। ये अपना सारे जो है ये हम नोटबुक वर्क के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31। यस, yes. Now moving to the next exercise, which is about match the animals to their homes and the sounds they make। मतलब as you can see that here कि वन जो कॉलम है उसमें तो एनिमल्स के साउंड है और दूसरे में क्या है? एनिमल्स के पिक्चर दे रखे हैं। एंड द थर्ड कॉलम में क्या दे रखा है? एनिमल्स के होम दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले साउंड को एनिमल से मिलाते हैं। कौन सा एनिमल कौन सा साउंड मतलब निकालता है, उसका कौन सा साउंड है। ओके देखो जैसे कि आ जाते हैं अपने ये BU ZZ, बुज। बुज किसका साउंड होता है बेटा? बुज होता है, बुज किसका साउंड होता है? बुज होता है बी का, है ना? तो यहाँ पे बी से मैच करेंगे इससे। गुड। नी, नी होता है हॉर्स का साउंड। मू, मू किसका होता है? काऊ का। और हुट, हुट होता है आउल का। समझ में आया? यस अब देखो क्या करते हैं, एनिमल्स को उनके होम से मैच करते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो आउल कहाँ रहता है? आउल कहाँ रहता है बताओ? आउल ट्रीज पे रहता है, तो इसको मैच कर दिया ट्रीज से, है ना? ट्री पे रहता है ना आउल। बी, बी कहाँ रहती है? ये अपनी रहती है हाइव्स में। नेक्स्ट हॉर्स, हॉर्स का ये रहा। और गाउ, काउ कहाँ रहती है? शेड में। हो गया, मैच हो गया ना? समझ में आया? फर्स्ट क्या किया, साउंड को एनिमल से मैच किया, फिर सेकंड में एनिमल्स को उनके होम से मैच किया। गॉट इट? नेक्स्ट पे आते हैं नीचे, बी एक्सरसाइज। बी एक्सरसाइज क्या है? वेयर डू दीज एनिमल्स लीव। मतलब एनिमल्स की पिक्चर्स दे रखी है, आपको उनके होम का नेम लिखना है। नंबर 1, नाउ टेल मी आंसर। इट्स अ पिक्चर ऑफ अ लॉयन। लॉयन कहाँ रहता है? डैन में, DEN, डैन। नेक्स्ट ये क्या है बताओ?
इट्स अ पिक्चर ऑफ, ये एक इंसेक्ट है, ये कहाँ रहता है, ग्रास पे, GRASS, ग्रास पे। नेक्स्ट क्या है, डॉग, डॉग कहाँ रहता है, कैनल में, KENNEL, कैनल। यस। नेक्स्ट देखो फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ रहता है, पॉन्ड में, POND, पॉन्ड मतलब छोटा तालाब या पोखर। नेक्स्ट मंकी कहाँ रहता है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ट्री पे रहता है मंकी। डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए अपने आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो क्या है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर C, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है वहां पे आपको आंसर को फिल करना है अकॉर्डिंग टू देयर हेल्प बॉक्स। नंबर 1 देखो क्या है, A young one of a kangaroo is called a, एक जो young one होता है, कंगारू का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, JOEY, जॉय। कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, जॉय। द यंग वन ऑफ अ कैट इज कोल्ड, जो कैट बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन, KITTEN। समझ में आया एक्सरसाइज किससे रिगार्डिंग है, एनिमल्स, बेबी एनिमल्स से, किससे, बेबी एनिमल्स, एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं उससे रिगार्डिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3, द यंग वन ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड, बताओ बच्चे जो डॉगी होता है, डॉग होता है, उसके बेबी को क्या कहते हैं, पपी, PUPPY, puppy. Next frog. The young one of a frog is called TADPOLE, tadpole. जो फ्रॉग का छोटा बच्चा होता है उसे कहते हैं tadpole, छोटा फ्रॉग। द यंग वन ऑफ अ काउ इज अ कोल, जो बच्चा होता है ना काउ का, उसे हिंदी में कहते हैं बछड़ा और इंग्लिश में कहते हैं काफ, CALF। समझ में आया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट्स रिगार्डिंग योर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है बेटा, पहले ये बताओ। आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि ए एंड द, इनका यूज करना। आर्टिकल्स मतलब ए एंड द। अब देखो इनका यूज कैसे होगा, ए का कहाँ होता है, ए का जैसे कि वॉवल साउंड होता है ना, AEIOU, हाउ मेनी वॉवल साउंड, वॉवल्स कितने होते हैं, यस। अब जैसा कि मैंने आपको बेटा बताया कि जो एक्सरसाइज है अपनी, इट्स रिगार्डिंग टू आर्टिकल्स, ये आर्टिकल से रिगार्डिंग है। तो आर्टिकल्स क्या होता है, व्हाट इज आर्टिकल्स, दैट मींस ए एंड द। आर्टिकल्स का मतलब पता चला, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। बट हाउ टू वी यूज देयर आर्टिकल्स, हम इन आर्टिकल्स का यूज कैसे करें, ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यू जस्ट सी इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू वी यूज आर्टिकल्स। Articles a and the. A and the are usually called articles. A is used for singular countable nouns or adjectives. It is placed before the nouns beginning with consonants. यस। अब देखो ए, जो ए आर्टिकल है उसका यूज देखो आप, ए इज यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और एडजेक्टिव्स। जो ए है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर चीज, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल नाउन्स होनी चाहिए। काउंटेबल नाउन्स मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि अ गर्ल, अ बॉय, अ पेंसिल, अ बॉटल, अ कैमरा, अ कंप्यूटर। समझ में आया। ए मतलब सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नाउन हो उसके आगे ए आर्टिकल यूज होगा। इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। ये किसका किसका प्लेस लेते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने से पहले, जो कॉन्सोनेंट्स नाउन होती है उनके स्टार्ट होने से पहले ए का यूज होता है। Example: this is a cat. That is a ball. She is a girl. Gopal is a boy. यस। जैसा कि आपने एग्जाम्पल देखा, क्या देखा, अभी देखो स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, गोपाल इज अ बॉय,
रेड कलर में ए है ना, ए फॉर एप्पल, देखो ये शो हो रहा है, तो ये क्या है, आर्टिकल है। अब ये देखो बी ओ वाई, इसके पीछे क्या लिखा है, बॉय, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल का यूज होता है, ये भी ध्यान रखना आप। और जो सिंगुलर होती है काउंटेबल नाउन, उसके आगे ए का यूज होता है, जैसे शी इज अ गर्ल, देयर इज अ कैट, है ना, गोपाल इज अ बॉय, दिस इज अ बॉल। ये सारे क्या थे, एग्जाम्पल ऑफ a article. Moving to the next point. An is also used for singular countable nouns or adjectives. It is used before the words beginning with vowels A, E, I, O, U. Yes. अब देखो बेटा, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे पहला देखो n, a n, इसको क्या रीड करते हैं, n. An is also used for singular countable nouns or adjectives. N का यूज कहाँ होता है, वैसे ही जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं वही N का यूज होता है। A का भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होता है और N का भी वहीं पे यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब देखो अलग क्या है A और N में। It is used before the words beginning with vowels. A का तो कहाँ होता था, वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से पहले शुरू होते, वहां पे ए का यूज होता था। अब एन का कहाँ करना है हमें, जहां पे वॉवल्स साउंड आए, जैसे वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। रिपीट इट आफ्टर मी, ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और साथ में वॉवल्स आए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज, यूनिफॉर्म, अम्ब्रेला, ऐसे वर्ड से स्टार्ट, वॉवल से कोई भी स्पेलिंग या वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो एन का यूज होगा। गॉट इट माय पॉइंट? And with nouns beginning with silent H, our, honest, etc. और देखो एन का यूज कहाँ होता है, एक तो वॉवल्स के पहले, और वो विद द नाउन्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच। जो वर्ड या ऐसे नाउन्स जो एच वाले वर्ड से, एच अल्फाबेट से स्टार्ट हो, बट इन द केस ऑफ वो साइलेंट हो, जैसे कि आर्स, ऑनेस्ट, इटीसी। अब जैसे एच ओ यू आर से हम क्या रीड करते हैं, आर्स मतलब घंटे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो इसमें एच क्या है, दोनों वर्ड में साइलेंट है, तो इससे पहले भी क्या यूज होगा, एन यूज होगा। अब क्यों यूज होगा बताऊं मैं आपको, देखो ये ओ है ना, ओ, और इधर भी ओ से हम इसको रीड कर रहे हैं, तो ओ क्या है यहाँ पे, वॉवल्स है, ओ क्या एक वॉवल साउंड है, इसलिए एन का यूज हुआ, और एच साइलेंट रहता है इसमें। Example, I have an apple. That is an elephant. This is an ice cream. That is an orange. This is an umbrella. He is an honest boy. जैसा कि आपने एग्जाम्पल्स देखा एन आर्टिकल का, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन आइसक्रीम, और क्या था, दैट इज एन एलिफेंट। तो एन का यूज करना हमें आया, कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद वॉवल से पहले, और जहां पे एच साइलेंट वर्ड में यूज होता हो। The can be used for singular and plural, countable or uncountable nouns. We use the when we are referring to a particular or specific noun. यस अब देखो ए का सीख लिया हमने कहाँ यूज होता है, एन का सीख लिया हमें आर्टिकल का कहाँ यूज होता है। अब द पे आता है। द कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। द का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, और वो सिंगुलर प्लूरल जो नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। जैसे क्या होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन, द एलिफेंट, द माउस, ये काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल, जैसे अनकाउंटेबल नाउन क्या ले लेते हैं अपने, नूडल्स ले लेते हैं, मनी ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, द मिल्क,
समझ में आया? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसे हम 1 2 3 4 गिनती में काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी हम काउंट करते हैं, जैसे 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 ग्लास ऑफ जूस, 2 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 ग्लास ऑफ वाटर, 1 बॉटल ऑफ वाटर। समझे? आगे देखो, वी यूज द when we are referring to a particular or specific noun, मतलब द का यूज उस नाउन के साथ होता है जो पर्टिकुलर होती है और स्पेसिफिक होती है, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, लाइब्रेरी हो गई, या कोई न्यूज़पेपर का नेम हो गया, या किसी बुक का नेम हो गया, है ना, जैसे भागवत गीता, तो द भागवत गीता, बाइबल, द बाइबल। कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसके आगे भी द का यूज होता है। Example: the sun, the moon, the doctor, the red fort. Now let's see some examples on how we use a, and the. यस, आपने द के एग्जांपल्स देखे ना, जैसे द सन, द मून, द स्टार, मतलब कि ये ऐसी चीजें हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? फिक्स है, पर्टिकुलर है। द सन, द मून, द स्टार्स, मतलब चांद, सूरज, तारे सारे भगवान ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ सन, द सन, मून एंड स्टार। तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होते, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक नाउन है ये। तो इसके आगे भी द का यूज हुआ है। और क्या आया था? द रेड फोर्ट, मतलब लाल किला, तो वो भी मॉन्यूमेंट है, वो उसके आगे भी द का यूज हुआ। अब देखो क्या करना है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन हाउ वी यूज ए एंड द। तीनों के एग्जांपल्स देखो और आइडेंटिफाई करना है आपको। I have a home. A bird is flying. That is an ice cream shop. That is an ice cream shop. This is an apple tree. Lion is the king of the jungle. A car is यस, जैसा कि आपने बेटा एग्जांपल देखा ए एंड द का, क्या देखा था? अ कार इज रनिंग ऑन द रोड, और क्या देखा था? अ लायन वाज स्लीपिंग इन हिज केव। ये सारे क्या है? सबका मिला जुला एग्जांपल था, ए का भी, एन का भी और द का भी। तो अब हम अपनी बुक एक्सरसाइज पे आते हैं, ए एंड द की से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। यस, राइट ए और एंड बिफोर द वर्ड्स गिवन बिलो, मतलब याद रखना बेटा, ए का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का यूज होता है, कॉन्सोनेंट से पहले। एन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वॉवल्स वर्ड से पहले, एंड प्लस एच जहां पे साइलेंट होता है वहां पे एन का यूज होता है। करें स्टार्ट। अब देखो HAT क्या होता है? एक कैप होती है एक तरह की, तो इसका आगे आएगा ए। यस, एरोप्लेन। एरोप्लेन देखो, ए वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा। समझ में आ रहा है आपको? बर्ड, बर्ड के आगे ए आएगा क्योंकि बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। गिफ्ट, गिफ्ट जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, आ जाएगा ए। एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? ई से हो रहा है तो ये क्या है? वॉवल है, तो एन आएगा। ऑक्टोपस, अगेन यूज हियर एन, क्योंकि ओ क्या है? एक वॉवल है। BAG, बैग, बैग से पहले ए आएगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम से पहले एन आएगा क्योंकि आई क्या है? वॉवल है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, बी एक्सरसाइज पे। बी में क्या है? ए एंड द, तीनों का यूज करना है, तो अच्छे से करना है अपने को। ओके, अब देखो कैसे यूज करना है। ये पूरी क्या एक स्टोरी है माउस और लायन की, ठीक है? तो इसमें देखो आपको मैं पहले है ना थोड़ा सा समझा देती हूँ। जहां पे भी आपको देखो डैश वर्ड दिख रहा है ना, उसके वर्ड के पीछे से आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहले देखो लायन लिखा है, लायन से पहले खाली जगह है, ब्लैंक है, डैश है। तो आपको जहां पे भी लाइन दिख रही है ना, खाली लाइन, फिल इन द ब्लैंक,
उसके पीछे वाले वर्ड को देख के ए एंड द का यूज करना है, आगे वाला वर्ड नहीं देखना है, पीछे वाला वर्ड आइडेंटिफाई करके ए एंड द का यूज करना है। ये सारी चीजें बेटा आप अपने माइंड में रखिए जो मैम आपको समझा रहे हैं, और इधर उधर नहीं देखना, स्क्रीन पे देखो आप। देखो लॉयन, लॉयन क्या है? एक लॉयन, वंस अ लिखो यहाँ पे, लॉयन, लॉयन क्या एक एनिमल है तो ए आ गया, क्योंकि और एल क्या है? एक कॉन्सोनेंट भी है। वॉज स्लीपिंग इन हिज केव व्हेन, माउस पे आ गया तो भी ए आएगा, बिकॉज माउस हियर इज अगेन एम, एम यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट है। माउस रन ओवर हिज पाव्स, अब क्या आएगा? द लिखो यहाँ पे, द टी एच ई, द लायन कॉच, फिर अगेन द आएगा, माउस अगेन द, the mouse and was about to eat him, अब आगे क्या आएगा? फिर से माउस आया तो यहाँ पे द लगाना है। अब फिर देखो क्या है, फिर आगे लॉयन आया तो फिर द लगा, तो जहाँ पे भी माउस और लॉयन आए वहां पे द लगाना है आपको। और फर्स्ट वाली लाइन में ए का यूज क्यों हुआ वो मैं अभी आपको क्लियर करने वाली हूँ। ओके, यस। अब देखिए आगे, फिर से लॉयन आया तो क्या आएगा बेटा? दो, राइट हियर दो। ओके, अब आगे देखो, अगेन क्या आया यहाँ पे? लॉयन, वापस से द लिखना है आपको। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आया है, फॉरेस्ट का क्या होगा? द लॉयन वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, लॉयन कहाँ चल रहा था? फॉरेस्ट में चल रहा था, जंगल में चल रहा था। हंटर, अब हंटर मतलब शिकारी, तो यहाँ पे एक शिकारी आया वहां पे फॉरेस्ट में, तो अ आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, नेट लिखो यहाँ पे, द, ट्रैप्ड अंडर द नेट। आगे देखो लॉयन आया फिर से तो द आएगा। ओके, नेक्स्ट फिलअप पे आ जाओ, लिटिल माउस, तो द लिटिल माउस, द आएगा अगेन यहाँ पे। SPOT, स्पॉट, स्पॉट मतलब जगह, घटना जहाँ पे घटित होती है वो जगह, तो यहाँ पे द स्पॉट। नेक्स्ट द नेट, नेट से आगे भी द आएगा, लॉयन से आगे भी द आएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, मैम फर्स्ट लाइन में तो अपने लॉयन और माउस के आगे ए लगाया है, बाकी सब में द लगाया है, क्यों बेटा? बिकॉज देयर इज रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे एक कारण है, रीजन है। देखो पहला आप लाइन को रीड करो, वंस अ लॉयन वाज स्लीपिंग इन हिज केव, एक समय, एक दिन, या जब भी, एक बार, एक समय, एक दिन, एक लॉयन, एक शेर अपनी केव में सो रहा था। एक लॉयन के बारे में आपको बताना है, लॉयन एक ही तो था वहां पे, तो अ लॉयन। बाद में व्हेन अ माउस रन ओवर हिज पाउस, तो एक माउस वहां आया, इसलिए पहली फर्स्ट लाइन में अ लगाया, बाकी सब में द लगाया। क्यों? क्योंकि लॉयन और माउस क्या है? एक पर्टिकुलर, एक क्या है? नाउन है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, एक नेम है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, द लॉयन द माउस। इसलिए फर्स्ट लाइन में उसकी लाइन की मीनिंग के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग हमने ए लगाया, बाकी सब में रूल के अकॉर्डिंग द लगाया हमने। समझ में आया? So children, today we have done lesson number 4, which is regarding our English subject. I hope you understood as well as you enjoyed this video. So see you soon in next class. Take care of self.